students, welcome back in our geography class. Today we are going to continue our sixth chapter, geomorphic processes. And our today's topic is diastrophism. What is the meaning of diastrophism? Student, diastrophism means deformation of earth crust. Earth crust का deformation होना, in which two processes are involved, and these two involving processes are folding and faulting. Understood? It considered the part of geotectonic. डायस्ट्रैफिज्म को हम किससे कंसिडर कर रहे हैं? टेक्टोनिक से. टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है और इस मूवमेंट की वजह से फॉल्टिंग या फोल्डिंग का प्रोसेस होता है और हमारे अर्थ का क्रस्ट जो है उसमें डिफॉर्मेशन होता है, यानी कि जो फॉर्म्ड लेयर है वो डिफॉर्म्ड हो जाती है. This diastrophism comes from the Greek word which means dislocation. It's a Greek word. And meaning of Greek word is dislocation. Dislocate होना, यानी कि जगह से हटना. Students, there are two kind of processes are involved in the diastrophism. Firstly, organic process involving mountain building through severe folding and affecting long and narrow belt of the earth crust. Whereas second is aperogenic processes involve uplift or warping of the surface, past of the cut. Even earthquake involving local relatively minor movement and the plate tectonic involving horizontal movement of crustal plate. So entirely we see that due to the diastrophism, different kind of happening, different kind of processes involved. सबसे पहला प्रोसेस माउंटेन का बिल्डअप होना, दूसरा एपिरोजेनिक प्रोसेस जिसकी वजह से लार्ज जो क्रस्ट पार्ट है उसका अपलिफ्ट हो जाना, तीसरा अर्थक्वेक आना और अर्थक्वेक की वजह से माइनर मूवमेंट होना, एंड फोर्थ प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट एंड इट्स इन्वॉल्व हॉरिजॉन्टली मूवमेंट ऑफ क्रस्टल प्लेट्स. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होते हैं ना, convergent, divergent, that kind. So in the process of orogeny, the crust is severally deformed into folds, and due to aperogeny, there may be simple deformation. तो सिंपल सी बात है, जब भी orogeny प्रोसेस होता है तो क्रस्ट जो है वो डिफॉर्म्ड हो जाता है कई फोल्ड्स में, और एपिरोजेनी जब प्रोसेस होता है तो सिंपल सा डिफॉर्मेशन होता है. So it means orogeny is a mountain building process. Orogeny की वजह से माउंटेन का बिल्डअप होता है, whereas एपिरोजेनी is continental building process, यानी कि कॉन्टिनेंट किससे बनता है? एपिरोजेनी प्रोसेस से, और माउंटेन बिल्डअप किससे होते हैं? orogeny प्रोसेस से. तभी तो माउंटेन्स कैसे हैं? फोल्डेड है, ऐसे लगता है कि एक के ऊपर एक फोल्ड करके उनको रखा हुआ है, राइट? So through the process of orogeny, aperogeny, earthquake and plate tectonic, there can be faulting and fracturing of the crust. इन सारे entire processes की वजह से faulting होती है, fracturing होती है और crust का formation होता है. So all these processes cause due to the three relative factors, and these three factors are pressure, volume and temperature, and includingly in short form, they are called PVT changes, which in turn induce metamorphism of rocks. Later we discuss about these systems, but I know you already aware about the metamorphism of rocks. Metamorphism क्या होता है? जब किसी parent rock में chemical या फिर organic या physical factor changes होते हैं तो उससे जो नई चट्टान बनती है उसको मेटामॉर्फिक कहते हैं. तो यहाँ भी क्या हो रहा है? जब भी क्रस्ट पर प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उस पर उसकी वजह से कुछ चेंजेस अकर होते हैं और वो मेटामॉर्फिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? स्टूडेंट, एपिरोजेनी एंड ओरिजिनी, साइड द डिफरेंस. आपको इसमें डिफरेंस पता करना है. अभी बताया मैंने एपिरोजेनी प्रोसेस और ओरिजिनी. एपिरोजेनी प्रोसेस रिलेटेड विद द टेक्टोनिक मूवमेंट, and basically due to this process the continents are built, whereas orogeny is related to the mountain building process, right?
Now let us discuss with the other topic, volcanism. Volcanism, when the interior magma tried to come outside due to the high amount of energy, due to the high amount of heat and excessive temperature, that particular process is called volcanism. So volcanism includes the movement of molten rock, which is called magma, on or toward the earth's surface, and also formation of many intrusive and extrusive volcanic formation. Volcanism में हम लोग मूवमेंट की बात करते हैं, किसकी? मॉल्टन रॉक की, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। ये मैग्मा या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ आकर के बहुत सारे इंट्रूसिव या एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक फॉर्मेशन बनाता है। So many aspects of volcanism have already been detailed in the unit second under igneous rock in the preceding chapter in this unit, right? So what do the words volcanism and volcanoes indicate? Volcanism is a process, whereas volcanoes are the system, right? Volcanism क्या होता है? मैग्मा का बाहर आना, और volcano are the source from where the volcano comes outside, right? This is all about the topic volcanism. Now let's move to the new topic, exogenic processes. So diastrophism and volcanism, these two processes are related with the endogenic system. अर्थ के इंटीरियर से जो प्रोसेस लगते हैं। अब इनके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाहरी प्रोसेस को, which is called exogenic process. So students, the exogenic process derive their energy from atmosphere and determined by the ultimate energy from sun and also the gradients created by tectonic factor. Exogenic process जो है वो एटमॉस्फेयर से डिटरमाइन होता है, और बेसिकली हम अल्टीमेट तरीके से बात करें तो अल्टीमेटली द सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन एंड ऑल्सो द मूवमेंट इज डिपेंड अपॉन द टेक्टोनिक factors gradients. So why do you think that slopes or gradients are created by tectonic factors? ऐसा क्यों मानते हैं आप कि slopes या gradients टेक्टोनिक फैक्टर की वजह से बने हैं? क्योंकि अभी हमने बात की डायस्ट्रैफिज्म में जो हमने दो प्रोसेसेस की बात की थी, वो बिल्डिंग अप प्रोसेस है जो माउंटेन वगैरह बनाता है और माउंटेन को ऊपर उठाने का काम करता है ड्यू टू द फोल्डिंग और फॉल्टिंग। अब क्योंकि इसका क्रिएशन टेक्टोनिक मूवमेंट से हुआ है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्लोप और ग्रेडियंट्स भी किससे क्रिएट हुए हैं? अगर माउंटेन क्रिएट हुए हैं टेक्टोनिक मूवमेंट से, तो दीज प्रोसेसेस आर आल्सो, दीज स्लोप एंड ग्रेडियंट्स आर आल्सो क्रिएटेड बाय द टेक्टोनिक फैक्टर्स, राइट? Gravitational force acts upon all earth material having a sloping surface and tend to produce movement of matter in downslope direction. एक फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड बेटा ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये अर्थ के मटेरियल पर स्लोप बनाने के लिए या मूवमेंट के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। तो जितने भी मूवमेंट होते हैं मटेरियल्स के, वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अकॉर्डिंग। और ग्रेविटी क्या कहता है कि चाहे कितनी भी फोर्स से आप किसी चीज को ऊपर उछालो, वो वापस जमीन पर आएगा, राइट? सो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो जो फोर्स एक पर यूनिट एरिया पे अप्लाई होता है उसको क्या कहते हैं? उसको स्ट्रेस कहते हैं। And stress is produced in a solid by pushing or pulling. और स्ट्रेस क्या होता है? किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को पुश या पुल करना स्ट्रेस होता है, क्योंकि यहाँ क्या लगा? यहाँ फोर्स लगा। एक पर्टिकुलर पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है उसको स्ट्रेस कहते हैं। और स्ट्रेस किससे लगा? किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करने से या पुश करने से, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक बहुत बड़ा गेट है, उस गेट पर आपने हाथ से पुश किया या फिर उसे पुल किया, तो ये जो पुश और पुल की वजह से
उसमें मोशन आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है? स्ट्रेस की वजह से आ रहा है, राइट? सो स्टूडेंट, इट इज दिस स्ट्रेस दैट ब्रेक्स रॉक्स एंड अदर अर्थ मटेरियल। ये वही स्ट्रेस है जिसकी वजह से अर्थ मटेरियल में चेंजेस आते हैं। दिस इंड्यूसेस deformation, forces acting along the faces of earth material and are shear stress। ऐसे फोर्सेस जो कि अर्थ मटेरियल के फेसेस में चेंजेस अगर करते हैं उन्हें shear stress या separating forces कहा जाता है। And in this stress that breaks rocks and other earth material, the shear stresses result in angular displacement or slippage। shear stress क्या है? shear stress है separating force जो दो चट्टानों को तोड़ रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये shear stress रिजल्ट इन किसके रिजल्ट में काम आता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या स्लिपेज के, ठीक है, किसी के फिसलन में। So beside the gravitational stress, earth material becomes subjected to molecular stress that may be caused by a number of factors, amongst which temperature changes, crystallization and melting are the most common। Clear? Gravitational stress के अलावा अर्थ के मटेरियल में जो चेंजेस अकर होते हैं उनका कारण और भी बहुत सारा हो सकता है। टेम्परेचर हो सकता है, क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है, या मेल्टिंग हो सकता है, किसी चीज का, ऑब्जेक्ट का पिघलना। केमिकल प्रोसेस नॉर्मली लीड टू लूजिंग ऑफ बॉन्ड। जब भी केमिकल प्रोसेस होता है तो ये बॉन्ड को लूज करने की कोशिश करता है बिटवीन ग्रेन्स, एंड इट डिसॉल्व ऑफ सोल्यूबल मिनरल्स और सीमेंटिंग मटेरियल। दस द बेसिक रीजन दैट लीड्स टू विदरिंग, और इसी की वजह से ये किसको लीड करता है? ये विदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन, इन सब चीजों को इफेक्ट करता है, लीड करता है। इन डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस इन द बॉडी ऑफ द अर्थ मटेरियल, स्टूडेंट्स, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर द also two important climatic elements that control various processes, temperature or precipitation। These two important climatic elements control the various processes। So all the exogenic geomorphic processes are covered under a general term, means the erosion, mass movement, withering, these entire terms are under cover in a general term, and that particular general term is denudation। denudation word में सारी चीजें ऐड हो गई, राइट? द वर्ड डेन्यूड मीन्स स्ट्रिप ऑफ और टू अनकवर। डेन्यूड का मतलब ही होता है किसी एलिमेंट का स्ट्रिप ऑफ या अनकवर हो जाना, और ये अनकवर या स्ट्रिप ऑफ कब होगा? जब विदरिंग, इरोजन, मास मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे प्रोसेस इसमें इंक्लूड होंगे, राइट? सो द फ्लो चार्ट हियर गिव्स द denudation process and their respective driving forces। It should become clear from this chart that for each process there exists a distinctive driving force of energy। यहाँ पर एक चार्ट है, अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि प्रोसेस अलग हैं और उनके ड्राइविंग फोर्सेस यानी कि उन पे लगने वाली एनर्जी डिफरेंशिएटिंग है। As there are different climatic regions owing to different variation in thermal gradients creating by latitudinal, seasonal and land and water spread on the surface of the earth। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे अर्थ पर, अर्थ क्योंकि राउंड है और मोशन है, इसकी वजह से लैटिट्यूडनल एरियाज, उनका सीजन, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर, ये सब डिफरेंशिएट हैं। तो इन सब का जो भी एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है वो भी डिफरेंशिएट होता है अकॉर्डिंग टू एरिया, region to region। The density, type and distribution of vegetation, which largely depend upon precipitation and temperature, also exert the influences। Now see the chart। Here processes are withering, mass movement and erosion। It means these are includingly related with the geomorphic process। And why the process occur? Due to the forces, due to the driving energy, and for withering, gravity, molecular stress, chemical action। These three things are responsible, whereas mass movement is depend upon
the gravitational force, and erosion and transportation are based upon the kinetic energy. It means these three are separated to each other, and of course the process are separate, and the driving force, the energy, is also separated. Understood? So within different climatic region there may be local variation of the effect. अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन में तो अलग अलग वेरिएशन होता ही है, और उस वेरिएशन का असर जो भी अर्थ सरफेस है उसके चेंजेस में आता है, डेनुडेशन के प्रोसेस में आता है, लेकिन ये असर और भी ज्यादा वेरिड होता है क्योंकि पर्टिकुलर एरिया पर कुछ लोकल वेरिएशंस भी होते हैं, और वो लोकल वेरिएशन भी इन डिफरेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट को कंट्रोल करते हैं. जैसे कि एल्टीट्यूडनल डिफरेंस, किसी पर्टिकुलर एरिया पर एल्टीट्यूड अगर माउंटेनियस है तो डिफरेंट हो जाता है, प्लेन एरिया है तो डिफरेंट हो जाता है. वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, हम सभी जानते हैं नॉर्थ और साउथ में जो सन की रेज हैं, जो इंसोलेशन है वो स्लेंट आता है, जबकि जितने भी एरियाज हैं ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल एरिया वहां पर बिल्कुल स्ट्रेट इंसोलेशन है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ इंसोलेशन आता है, राइट? And further, due to difference in wind velocities and direction as well, an amount of kind of precipitation, its intensity, the relation between precipitation and evaporation, daily range of temperature, freezing, blowing frequency, these entire things are relative for the variation. हमारे पूरे अर्थ पर, क्योंकि अर्थ राउंड है, अर्थ मूविंग है, तो बहुत डिफरेंशिएशन है और उस डिफरेंशिएशन का असर भी डिफरेंट तरीके से पड़ता है. क्लियर है? जहां पर क्लाइमेट ड्राई है वहां पर अलग तरीके का जियोमॉर्फिक एजेंट वर्क करेगा, और जहां वेट है वहां पर अलग. जहां प्रेसिपिटेशन ज्यादा है उसका इरोजन विदरिंग डिफरेंट पैटर्न पर होगा, और जहां प्रेसिपिटेशन नहीं है वो डिफरेंट. कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां दिन के ही और रात के टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होता है, जैसे डेजर्ट एरिया, तो वहां पर वेदरिंग, इरोजन या ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस अलग होगा. क्लियर बेटा? सो हियर अ क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द सोल ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल द एक्सोजेनिक प्रोसेस? तो एक सोल ड्राइविंग फोर्स अगर हम बात करें तो वो कौन सा है जो इन सारे एक्सोजेनिक प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्लाइमेटिक फैक्टर्स बीइंग इक्वल, द इंटेंसिटी ऑफ एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस depends upon the type of structure of rock. So the term structure includes such aspects of rocks as fold, fault, orientation, inclination, beds, presence of absence of joints, bedding planes, hardness, softness, सारी चीजों को शामिल कर लेते हैं हम. किसमें? इन सबको हम स्ट्रक्चर में शामिल कर रहे हैं. अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर में उसका फोल्डिंग, फॉल्टिंग, उसका ओरिएंटेशन, इंक्लिनेशन ऑफ बेड, जॉइंट्स का प्रेजेंस या एब्सेंस होना, बेडिंग प्लेन्स, हार्डनेस कितनी है, सॉफ्टनेस क्या है मिनरल का, केमिकल सस्पेक्टेबिलिटी कितनी है, परमेबिलिटी कितनी है, इम्परमेबिलिटी कितनी है, इन सारे फैक्टर्स को इसमें शामिल किया जाता है. यानी कि स्ट्रक्चर ही अपने आप में बहुत सारी वैलिड फॉर्म का एक कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम है, एक टुगेदर फॉर्मेशन है. सो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स विद डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर ऑफरिंग वैरिंग रेसिस्टेंस. तो यहाँ एक चीज तो क्लियर होती है कि रॉक डिफरेंट होते हैं तो स्ट्रक्चर में भी डिफरेंशिएशन आता है. हमने बात की है देयर आर 3 मेन कैटेगराइजेशन ऑफ रॉक्स, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री. तो जिस तरीके के रॉक होंगे उसी तरीके का स्ट्रक्चर होगा और उसी तरीके का डेनुडेशन का प्रोसेस भी होगा. A particular rock may be resistant to one process and non-resistant to another. हो सकता है कई बार कि एक रॉक जो है वो किसी एक प्रोसेस के लिए रेसिस्टेंस हो और दूसरे के लिए नॉन रेसिस्टेंट हो. And under varying climatic condition, particular rock may exhibit different degrees of resistance. या फिर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में अलग अलग रेसिस्टेंस पावर हो. राइट? So geomorphic process and hence they operate at different rates and give rise to differences in topography. The effects of most of the exogenic geomorphic processes are smaller and slow and may be imperceptible in a short time span. But well, in the long run effect
the rock severely due to continued fatigue. So finally, it boils down the one fact that the differences on surface of the earth, though originally related to the crustal evolution, continue to exist in some form or the other due to the differences in the type and the structure of the earth material. तो इस फाइनली हम एक बात पर आ गए हैं यहाँ कि जो हमारे अर्थ के सरफेस पर डिफरेंशिएशन है, इसका असर क्रिस्टल इवोल्यूशन पर पड़ता है कि क्रिस्टल इवोल्यूशन किस तरीके का हुआ, क्यों ये सारे वेरिएशन आए, क्यों स्ट्रक्चर में इतना डिफरेंशिएशन है, क्योंकि हमारे अर्थ के इंटीरियर में डिफरेंट मटेरियल्स हैं, डिफरेंट तरीके के हमारे प्रोसेसेस होते हैं और ये डिफरेंट प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल हैं डिफरेंट टाइप के जियोमॉर्फिक सिस्टम के लिए. Some of the exogenic geomorphic processes have been dealt in detail here. So tomorrow, in the next video, we are going to discuss about withering. Right? So till then, take care. Have a nice day.